మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సాదే వర్మ. అనుకున్న విధంగానే అక్టోబర్ 13వ తేదీన ఈరోజు ఢిల్లీలో జరిగిన సిబిటి మీటింగ్లో మినిమం పెన్షన్ పెంపుదల ఎజెండాలో ఉందో లేదో అన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం సీక్రెట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఎందువల్ల తెలీదు. ముందు నుంచి ఈ విషయంలో ఎన్ఈసీ నాయకులతో కేంద్రం దోబూచులాడుతుందని క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సిబిటిలో చర్చించి ఆమోదం తెలిపిన విషయాలు కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవ్య గారు పేరు మీద ప్రెస్ రిలీజ్ కూడా చేశారు. అందులో ఇంపార్టెంట్ విషయాలు: సిబిటి అప్రూవ్స్ సింప్లిఫైడ్ అండ్ లిబరలైజ్డ్ పార్షియల్ విత్డ్రావల్స్ టు ఎన్హాన్స్ మెంబర్ కన్వీనియన్స్ and retirement security. 2. Vishwas scheme launched to reduce litigation through rationalized panel damages. 3. EPFO IPPB to partner to provide doorstep digital life certificates DLC services to the EPS pensioners. 4. As a part of EPFO 3.0, CBT approves comprehensive member-centric digital transformation framework to modernize the Provident Fund services. ఈరోజు సిబిటి మీటింగ్ జరుగుతున్న ఢిల్లీ కేంద్ర పిఎఫ్ కార్యాలయం ముందు ఎన్ఈసీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన తెలియజేస్తున్న సందర్భంలో కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి గారి నుండి ఎన్ఈసీ అధ్యక్షుడు కమాండర్ అశోక్ రావత్ గారితో పాటు 5 నాయకులను వచ్చి కలవాలని కబురు వచ్చింది. ఎన్ఈసీ నాయకులు కేంద్ర కార్మిక మంత్రిని కలవడం జరిగింది. మంత్రి గారు ఎన్ఈసీ నాయకులను సంబోధిస్తూ, మీరు ఏమీ చింతించవద్దని, త్వరలో మీ మినిమం పెన్షన్ పెంపుదల ప్రకటిస్తామని హామీ ఇచ్చారని, దానికి బదులుగా ఎన్ఈసీ నాయకులు మీరు ఏమి హామీ ఇచ్చినా వ్రాతపూర్వకంగా ఇవ్వాలని కోరడం జరిగిందని, దానిపై రేపు 14 అక్టోబర్ 2:30 గంటలకు 7 ఎన్ఈసీ నాయకులను కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి గారు మన్సుఖ్ మాండవ్య గారిని కార్యాలయంలో నందు కలవాలని కోరడం జరిగిందని ఎన్ఈసీ అధ్యక్షులు కమాండర్ అశోక్ రావత్ గారు ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తున్న ఈపీఎస్ పెన్షన్ల సమక్షంలో తెలియజేయడం జరిగింది. రేపు కేంద్ర కార్మిక మంత్రి శ్రీ మన్సుఖ్ మాండవ్య గారిని సమక్షంలో ఎన్ఈసీ నాయకుల చర్చలు సారాంశం బయటికి వెలువడే అవకాశం ఉంది. దేశవ్యాప్త ఈపీఎఫ్ పెన్షన్లందరూ భవిష్యత్తు తేలనుంది. जिस काम के लिए आए थे और हम सब आज यहाँ पर जिस काम के लिए इकट्ठा हुए चंद्रशेखर पाठक जी, तो हम सब लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी हो. जो 10 साल से लगातार आप श्रम कर रहे हैं, आपका जो पराक्रम है, जो पुरुषार्थ है, उस आपका विजय का क्षण बहुत नजदीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. हमने सोचा, बेंगलोर में पहले इनका सीबीटी की मीटिंग तय हुई थी. सबसे पहले 10 तारीख को तय हुई. हमने बेंगलोर में 10 तारीख को बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन रखा. फिर उन्होंने जब वो देखा तो करवा चौथ का निमित्त निकाल के 11-12 को कर दी. हमने 11-12 में वहां पे आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, 10 का कैंसिल करके. किसी को सभा एक मीटिंग यहां से वहां शिफ्ट करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इतना बड़ा जमघट, इतना बड़ा जमाव, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने में टाइम लगता है. परिहार जी बराबर है. तो इतना टाइम लगता है. तो 11 और 12 तारीख को हमने फ्रीडम पार्क बेंगलोर में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया. जब उन्होंने देखा वहां 25-30 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया दिल्ली में. तो हमने वो भी किया. 11 और 12 तारीख को, मतलब कल और परसों में बेंगलोर में था. बहुत बड़ी मीटिंग आपने यूट्यूब पे देखा होगा. पूरा फ्रीडम पार्क फुल था. और यहाँ पर आज इतने कम नोटिस में आज हमने यहाँ पर आप जमा हुए. यहाँ भी बहुत भीड़ हो सकती थी, लेकिन पहले ही मंत्री जी का मैसेज आया कि आपका स्वागत है, आप आकर मुझसे चर्चा करें. जब ये पता चला कि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है,
तो हमने अपने आंदोलन को टोन डाउन किया। जानबूझकर हमने ज्यादा लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया। इसका कारण है कि हमें केवल विरोध के लिए विरोध किसी का भी नहीं करना है। हमें अपने काम होने से मतलब है। जो हमारा काम हो उसके लिए हमें चाहे 2 कदम पीछे भी लेना पड़े हम लेंगे। नहीं तो केवल विरोध करके सिर्फ लीडरशिप चमकाई जा सकती है, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी नेतृत्व चमकाने के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या करने से अच्छा होगा, सबका भला किसमें है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, जो लोग देर से आए उनको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पहुँचते ही 10 बजे मंत्री जी ने ऊपर से आदमी भेजे और यहाँ से 5 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाने के लिए कहा। हम 5 लोग यहाँ से गए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आपके प्रतिनिधि के साथ होता है वो आपके कष्टों की प्रतिक्रिया है। आप जो कष्ट कर रहे हैं, जो पराक्रम आपका है, जो आपकी शक्ति एनर्जी है, वो प्रतिनिधि को मिलती है और उसका स्वागत सत्कार मतलब आपका स्वागत सत्कार होता है। बराबर है? तो यहाँ पर ईपीएफओ के 3 अफसर आए थे, वो हमें लेके गए। लिफ्ट के पास 2 अफसर खड़े थे। लिफ्ट के बाद ऊपर गए तो वहाँ पे पूरे ईपीएफओ के अधिकारी खड़े थे, स्वयं सीपीएफसी खड़े थे। सबने स्वागत किया हमारा वहाँ तक, मीटिंग के वेन्यू तक। हमको अंदर बिठाया गया और मीटिंग में फिर हमारे साथ एक तरफ हम लोग बैठे थे, दूसरी तरफ ईपीएफओ और मंत्री जी के लोग बैठे थे। उसमें मीटिंग में स्वयं मंत्री जी थे, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जी थी, लेबर सेक्रेटरी थी, सीपीएफसी थे और सीपीएफसी के 2 एडिशनल सीपीएफसी थे। इतने लोग वहां पे बैठे थे और हम लोग थे। रास्ते की लड़ाई इतनी सम्मानजनक पोजीशन पे लाना, ये आपका पराक्रम है, ये आपका किया हुआ है। और मंत्री जी ने कहा, मेरे साथ सुरेश गंगवाल जी थे, हमारे आदरणीय हमारे मुख्य के सुरेश गंगवाल जी थे, अजीत घाड़गे जी थे और ओम शंकर तिवारी जी थे। उन्होंने भी ये सब देखा है। उन्होंने बुला के हमसे बात की। हमने उनको कहा, वो बोले हम आपका काम कर रहे हैं। हमने बोला ये आपने कई बार कहा है। होता यह है कि आप हमको समझा देते हो, हम भी सोचते हैं भी काम हो रहा है, इतने बड़े मंत्री कह रहे हैं तो हम आके अपने लोगों को बताते हैं। लेकिन लोग मेरे ऊपर या हमारे ऊपर कब तक विश्वास रखेंगे? जो आपको कहना है वो आप लिखित में दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। हमने बोला आपको देना है, नहीं देना है, कितना देना है, आपकी भावना क्या है, नहीं दे सकते तो कब दे सकते हो? जो भी आपकी मंशा है तो हमको बुला के चाय पिला के पूरी नहीं हो सकती। वो आप लोगों के सामने बताओ। आप नहीं बता सकते, हम बताएंगे, लेकिन आपका उसमें लिखित कागज होना जरूरी है। तो उन्होंने हमें कल का 2:30 बजे का समय मीटिंग के लिए दिया है। मंत्रालय में मीटिंग होगी। उसमें मैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी, आदरणीय सुरेश गंगवाल जी, आदरणीय राजीव भटनागर जी और बेंगलोर से हमारे आदरणीय रमाकांत मरगुन जी, ये 5 लोग आपके प्रतिनिधि के तौर पे जाएंगे। और वहां पर जो भी घटित होता है उसको हम YouTube के द्वारा आप सबको बताएंगे और जो भी लिख के देंगे उसका भी प्रचार प्रसारण होगा। हमने मंत्री जी को बताया कि दिवाली तक अगर कुछ शुभ संकेत नहीं है तो हमें काली दिवाली मनानी पड़ेगी। ना हम दिया जला सकते हैं, ना हम खा सकते हैं मीठा। हम उपवास करेंगे एक दिन। पूरे भारत में वृद्ध लोग एक दिन उपवास करेंगे। नहीं है हमारे लिए दिवाली। जिसका दिवाला निकला है उसकी दिवाली क्या है? बराबर है। और ये हमने अपनी भावना उन तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा आप शांत हो जाओ,
आप लोगों का काम अच्छा है, ये कोई राजनीतिक काम नहीं है, इसलिए हम आपको इतनी अहमियत देते हैं। और आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं एक मर्यादा की तरह के तहत कर रहे हो, इसलिए आपको हम सम्मान देते हैं। और इसीलिए मैं मंत्री होकर भी आपको बुलाता हूं, आपसे बात करता हूं, और मेरे खिलाफ आंदोलन है फिर भी मैं आपको बुलाता हूं। मैंने बोला खिलाफ तो आप जिम्मेदार है, आप ही के खिलाफ होगा, जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसी के खिलाफ आंदोलन होगा। ये कोई पर्सनल व्यक्तिगत किसी का हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सिस्टम के खिलाफ आंदोलन है। मैंने कल भी बेंगलोर में कहा, आज भी कहता हूं कि हमारी लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई है। एक क्रूर सिस्टम, अतिशय क्रूर सिस्टम के खिलाफ एक लाचार बुरे लोगों का संघर्ष है। ఇప్పటికైనా ఈ బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వం గతంలో ఎన్ఏసీ నాయకులకి ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకుంటారా, లేదా కనీసం ఈ దీపావళి పండుగ సందర్భంగానైనా ఈపీఎస్ పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్ చెప్తారా అన్నది ఎదురు చూడాలి. मोदी जी अपना वचन निभाओ, मोदी जी अपना वचन निभाओ, मोदी जी हमारे साथ वचन दिया। లెట్ us hope for the best. మరి ఒక కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.